स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Hello students, welcome to Study IQ. In this video, we will going to discuss a significant geopolitical development. That is, all the NATO member countries have decided that they will increase their defense spending up to 5%. Okay, that is a significant leap from the current 2% defense spending by all the NATO member countries. Why this particular thing was agreed by all the NATO member countries? Because of the three reasons that we all know. That is, first one is the Trump is aggressively pushing that all the NATO member countries should increase their defense spending. The second thing is very much clear that uncertainty in US foreign policy, and third one is Russian aggression in US as well as in Ukraine, as well as we can say that Russian looming aggression in the future. So that is why they all agreed that we will increase our defense spending up to 5% by the end of 2035. So in this video, we will also discuss the emergence of NATO as well as CSTO, its counterpart led by Russia, that is Collective Security Treaty Organization. In this video, we will also try to discuss that what is the future of NATO as well as what is the future of CSTO. So let's start. That is the news item that NATO agrees to hike defense spending by 5%, what it really means. So we will discuss this news item in this particular video. So the most significant update is the change in the defense spending target. What is the new target? That is 5% of their GDP defense annually by the 2035. This 5% can be broken down further. That is 3.5% for the core military requirement. Core military requirements such as troops, weapons, equipment and readiness. And 1.5% for peripheral aspect, broader defense and security related spending such as cyber security, critical infrastructure protection and energy security and space capabilities. So basically they agreed that we will spend 5% of our GDP by the end of 2035, which can be broken down into two parts. That, okay, you can see here. Moving ahead with this, now after this video, you should try to attempt this particular question as well as other questions from UPSC, okay, which can be asked or which were asked by UPSC in the past. There is one question, okay, from previous year question papers. That is the expansion and strengthening of NATO and the stronger US-Europe strategic partnership works well for India. What is your opinion about this statement? Give reasons and examples to support your answer. 15 marker question, 250 words you have to write this answer. Okay, GS paper 2 IR. GS paper 2 IR. Try to attempt this question, try to write this question. I will upload a model answer of this question in that Telegram channel group. Okay. Apart from that, you should also try to solve these two questions after watching this video. Fine. The question is, which of the following statement regarding NATO and the European Union are correct? The first one is all member states of the European Union are NATO members. Second one is NATO is military alliance while the European Union is primarily an economic political union, and the United States is the founding member of NATO but not a member of European Union. This is the first question. You should comment your answer in the comment section and we will give like to that particular right answer. Okay. Second question. Consider the following countries: Ireland, Sweden, Norway and Turkey. Which one of the above country are the member of NATO but not the member of European Union? Try to solve this question. Fine. Before moving ahead, I would like to make announcement that Pratigya batch, morning batch is going to close soon. This cell will going to close soon on 30th June. So you can use this code to avail the maximum discount. And there are many features of this batch such as
extra 6 month validity of this batch along with easy refund and no question asked. This is the problem faced by many students, that first they get enrolled in any of the batch, and if they will not like that particular batch or any of the faculty, then they will be they will be toiling very hard to get their refund back. But this is not true with that particular batch. So you can join this batch by using this code to avail the maximum discount. Moving ahead with this, I would also like to announce this thing, that from 5th of July, a new batch for philosophy optional will going to start. You can use again the same code to avail the maximum discount. So the model answer for that mains question will be uploaded on this particular Telegram channel group. You can access that model answer from here only. Okay, so now we will discuss the news item. What are the drivers of this increased spending? As we know that war in Ukraine is going on, Russia is continuously showing aggression. That is why they all agreed that yes, we should increase our defense spending. That is possible future threat from Russia, leading many European capitals to boost their investment in defense and plan to increase even further. The second is, as we all know that after Trump, how much uncertainty is quite visible in the US foreign policy. So uncertainty, UN foreign policy and Trump's emergence. Possibility that US under a potential future Trump presidency might withdraw some of its troops and capabilities from the Europe. ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे वो ट्रूप्स निकाल लें, और ये पहले भी बोल चुके हैं ट्रम्प, तो हो सकता है ये चीज पॉसिबल है फ्यूचर में, इसीलिए उन्होंने डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दी. अनसर्टेनिटी कंपेल्स यूरोपियन नेशन टू टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन डिफेंस, क्योंकि अभी तक ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो डिपेंडेंट हैं किस पे? यूएस पे. सो नेटो मेंबर स्टेप्स अप स्पेंडिंग बट डाउट्स अबाउट यूएस रिमेन, है ना. तो यूएस इनका आप बोल सकते हो कि दे ऑल दीज नेटो कंट्रीज आर अंडर यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला, है ना. ये टर्म बड़ा यूज किया जाता है. लेकिन अब जब जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला जिसकी है वही आपसे बोल दे कि डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाओ नहीं तो मैं अपने ट्रूप्स निकाल दूंगा, तो क्या होगा? तो सबको समझ में आ गया है कि अब खुद का ध्यान खुद रखना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा. 10 से 15 साल लगेगा इनका खुद का डिफेंस प्रोग्राम और सेल्फ सफिशिएंट बनने में. तब तक तो अभी भी यूएस की जरूरत है. तो जो ट्रंप बोलेंगे वो यूरोपियन कंट्रीज मान लेंगी, और वो उन्होंने माना. ठीक है. शिफ्टिंग बर्डन शेयरिंग डायनामिक्स विथ 5% टारगेट यूरोपियन मेंबर्स टेकिंग ऑन अ सिग्निफिकेंटली लार्जर शेयर इज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू रशियन थ्रेट एंड यूएस प्रेशर. डबल जोपार्डी है या नहीं है? एक साइड से रशियन थ्रेट इज लूमिंग लार्ज, ऑन द अदर हैंड ट्रंप इज ऑल्सो प्रेशराइजिंग देम कि डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाओ. ठीक है. इकोनॉमिक रियलिटीज एंड फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें एक क्लोज है इमरजेंसी क्लोज का यूरोपियन यूनियन में, इन द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट अलाउइंग कंट्रीज टू इंक्रीज देयर डिफेंस स्पेंडिंग अप टू 1.5%. तो 2% अभी तक था, 1.5% और बढ़ा देंगे तो 3% तो वैसे ही हो जाएगा. दिस डेमोन्स्ट्रेट अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू फैसिलिटेट इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है. तो ये तो इस न्यूज आइटम का लेखा जोखा था. नाउ वी विल डिस्कस नेटो, कि नेटो कैसे अस्तित्व में आया. ठीक है. यू ऑल नो दैट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू व्हाट हैपेंड, दैट two power blocks were emerged. One power block led by US, another by USSR, or you can say Soviet Union. Okay, that was ideological battle, economic battle, military battle. You can consider each and every aspect of life. Okay, so capitalistic block led by US, USSR led socialist block. But after 1945, there were many events where USSR or Soviet Union have shown aggression, like Berlin blockade. Okay, the city of Berlin was divided into two parts. Okay, Eastern Berlin and Western Berlin, है ना. और East Germany और West Germany का भी आपने नाम सुना होगा. So Berlin they orchestrated Berlin blockade. They orchestrated military coup in Czechoslovakia, और वहां पे भी कम्युनिस्ट ने टेक ओवर कर लिया.
and that threaten all the Western European nation. That in future there are chances that Soviet Union will take over them. Soviet Union along with its ideology of socialism and communism will take over them, and all those countries were capitalistic country. So naturally, okay, naturally they aligned their policies, their foreign policies with the US, and that in this manner, okay, US led collective security alliance, we can say, or NATO was emerged in 1940s, और यू कैन से इन 1948 के आसपास नेटो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ. धीरे धीरे करके बहुत सारी कंट्रीज उसमें ज्वाइन करती चली गई, है ना. फिर यूएसएसआर इन 1991 यूएसएसआर का विघटन हो गया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, एंड मेनी कंट्रीज कमिंग आउट केम आउट फ्रॉम यूएसएसआर आल्सो स्टार्टेड ज्वाइनिंग नेटो. ठीक है, तो ये था. अभी इतनी कंट्रीज हैं, ये उन कंट्रीज का मैप है. इनफैक्ट मेनी ऑफ द कंट्रीज आर डायरेक्टली शेयरिंग देयर बॉर्डर विथ रशिया. ठीक है, तो क्या था बैकग्राउंड और अच्छे से देखते हैं. इमरजेंस ऑफ नेटो फॉर्म्ड इन 1949 बाय यूएस, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशन. क्या हुआ? पोस्ट वॉर इनस्टेबिलिटी एंड फियर ऑफ सोवियत एक्सपांशन. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज्यादा फियर था, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था. यूरोप वॉज डेवास्टेटेड. वी नो दैट वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हालत हुई थी. इकोनॉमिकली फ्रेजाइल, the Soviet Union under the Joseph Stalin rapidly consolidated its over Eastern European countries and establishing communist satellite states. Expansion coupled with the events like coup in Czechoslovakia, okay, communist takeover of Czechoslovakia, then Berlin blockade, which was also orchestrated by Soviet Union. Then these are the news items. The need for collective security. So in that atmosphere of fear of Soviet expansion, Soviet invasion, Western European nation weakened by the war recognized that they could not individually deter a potential Soviet invasion. Hence, they joined US. Their natural ally was US. Keep the Russian out, American in and German down. ठीक है, that was the statement made by Lord Ismay, who was the first Secretary General of NATO. ठीक है, तो उनका मोटिव ही क्या था? 3 चीज. कीप द रशियन आउट, सेकेंड अमेरिकन इन, क्योंकि अमेरिका के सारे इंटरेस्ट आपको सिक्योर करने हैं, और जर्मनी का कोई भरोसा नहीं है तो उनको डाउन रखना है. ठीक है, टू डिटर सोवियत एक्सपांशनिज्म, एंश्योर सस्टेन अमेरिकन कमिटमेंट टू यूरोपियन सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट द resurgence of aggressive German militarism. So precursor of NATO, ऐसा नहीं है कि NATO was the first thing. इसके पहले भी collective security के arrangement हुए थे, but not that much successful, not that much effective. Treaty of Dunkirk, Treaty of Brussels laid the ground for mutual defense. However, it became clear that American involvement was necessary. ठीक है, क्योंकि ये सब तो पहले से ही बर्बाद हो चुके थे. US was the super power at that time. इस वजह से यूएस इन्वॉल्वमेंट बिकेम नेसेसरी. फिर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, मार्शल प्लान और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, जिन्होंने और ज्यादा नेटो प्लस मार्शल प्लान प्लस ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ने मिल करके पूरे यूरोप को एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला दे दी. नॉट ओनली मिलिट्री सिक्योरिटी बट इकोनॉमिक सिक्योरिटी एज वेल. तो यही था मार्शल प्लान, दैट इज यूरोपियन रिकवरी प्लान एम्ड टू रीबिल्ड Europe, Western Europe economies, thereby bolstering resistance to communism. And Truman Doctrine committed the US by providing economic and military aid to nation threatened by communist subjugation. ठीक है. Apart from that, the core principle of NATO is collective defense, collective security, which is enshrined in their Article 5, that any of the state is attacked, okay, against one member shall be considered as attack against all. This is the principle of collective defense, कि किसी एक भी मेंबर पे अटैक किया जाता है तो हम ये मानेंगे कि ये सारे नेटो मेंबर कंट्री पे अटैक है. मूविंग अहेड विद दिस. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नेटो बन गया तो यूएसएसआर चुप रहेगा, ये हम सब जानते ही हैं. तो यूएसएसआर ने अपना एक अलग से
वॉर्सो पैक्ट बना दिया। सो दिस वाज द सोवियत यूनियंस रिस्पॉन्स अगेंस्ट NATO, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, दैट इज फॉर्म्ड इन 1955। तो NATO आ गया इन 1949 एंड वॉर्सो पैक्ट आ गया इन 1955। ठीक है। डायरेक्ट काउंटर ऑफ वेस्ट जर्मन रीआर्मामेंट एंड नेटो एक्सेशन। अब वो फियर का माहौल है, कोल्ड वॉर एरा चल रहा है, किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट इस लेवल पे है, तो उन्होंने नाटो बना लिया। इन्होंने नेटो बनाया तो इन्होंने कहा कि हमें भी कुछ करना पड़ेगा, तो इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को मिलकर वॉर्सो पैक्ट बना दिया। इनको भी वेस्ट जर्मन रीआर्मामेंट का खतरा था। इमीडिएट कैटलिस्ट फॉर वॉर्सो पैक्ट वाज द वेस्ट जर्मनीज एक्सेशन बाय नेटो। Consolidation of Eastern Bloc. Warsaw Pact formalized and solidifies the Soviet Union's control over its satellite state, such as East Germany, Czechoslovakia, Poland, Hungary, रोमेनिया, अल्बेनिया एंड बुल्गारिया। तो ऐसे करके ये एक साइड से नेटो आ गया तो दूसरे साइड से वॉर्सो पैक्ट आ गया। बट द पॉइंट इज वॉर्सो पैक्ट एक टाइम के बाद में खत्म हो जाएगा। हम सब जानते हैं 1991 में बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो सोवियत यूनियन से बाहर आ गई थी। बाइपोलर वर्ल्ड एंड आर्म रेस। तो इसके बाद एक साइड पे नेटो, एक साइड पे वॉर्सो पैक्ट, शुरू हो गई क्या? आर्म्स रेस, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, एंड दैट पीरियड वाज नोन एज कोल्ड वॉर। सो फ्रॉम 1950 onwards up to 1991 till the disintegration of USSR, that Cold War tension between the two hegemons, or you can say between the two superpower, was going on. But that tension, Cold War, came to an end in 1991 with the disintegration of USSR. Ideological opposition, we all know one bloc is communist bloc, another bloc was capitalist bloc, and they ठीक है, imperialist alliance and emphasize the Warsaw Pact's role in promoting socialist solidarity and anti-imperialism. It served as a military complement to Council for Mutual Economic Assistance, COMCON, the Soviet-led economic bloc. तो जैसे नेटो था, मार्शल प्लान था, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन था, एक कलेक्टिव इकोनॉमिक मिलिट्री सिक्योरिटी यूएस लेकर के आ रहा था, वैसे ही वॉर्सो पैक्ट के साथ में कॉनकॉम था, कॉमकॉन। ठीक है, तो यूएसएसआर ने कहा कि हम भी कुछ लेकर के आते हैं, तो वो ये लेकर के आ गए। ये चलता रहा, कोल्ड वॉर एरा चलता रहा, एक साइड से नेटो, एक साइड से वॉर्सो पैक्ट। और ये कब तक चली चीजें? 1991 तक डिसइंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद रशियन रिस्पॉन्स क्या था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में तो ये था कि नहीं, कॉपरेशन रखेंगे, क्योंकि उस समय के जो रशियन प्रेसिडेंट्स थे वो नेटो का जो असली कैरेक्टर थे वो नहीं जानते थे। यहां तक कि ऐसा भी हुआ है कि कुछ नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जर्मन चांसलर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, अब हम 1 इंच भी ईस्टवर्ड एक्सपांड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगी, और इसी वजह से जो इनिशियल रशियन लीडरशिप थी जो 1991 में थी, उन्हें लगा कि नहीं, बस अब नेटो का जो कैरेक्टर है वो बदल गया है, नेटो के साथ में पीसफुल रिलेशन एस्टेब्लिश करने हैं, नेटो के साथ में कॉपरेशन पे आ गए। ठीक है, तो वो एक दौर था। डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991, subsequent collapse of Warsaw Pact in July 1991 fundamentally altered the European security landscape. ठीक है, Russian response to NATO was complex and varied, evolving from a period of guarded cooperation to increasing opposition. कैसे हुआ? Initial engagement and partnership. ठीक है, the immediate aftermath of the Cold War, there was a brief period of hope for closer cooperation. क्यों हुआ? Russian President Boris Yeltsin initially expressed interest in establishing closer tie with the West and NATO. पहला। दूसरा, रशिया joined NATO's Partnership for Peace program in 1994. ये भी हुआ है, designed to foster military cooperation with NATO member states. कैसे डिसइंटीग्रेशन हुआ? ऐसे हुआ सोवियत यूनियन का। सबसे पहले लिथुआनिया, जॉर्जिया, एक एक करके कंट्रीज बाहर आती गई। लिथुआनिया, जॉर्जिया, एस्टोनिया, लातविया, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, अजरबैजान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, एक एक करके कंट्री बाहर आती गई।
ये आप यहां से देख सकते हो कि इस तरीके से सोवियत यूनियन पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया। ओके, रिफॉर्म्स ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, 6 साल में, 5-6 सालों के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव ये चीजें कंप्लीट हो गई। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया हुआ है। अब रशिया उसको कितना सही मानता है कितना गलत ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन इन्हें पीस प्राइज मिला हुआ है, उसकी एक अलग कहानी है, उसको कभी बाद में समझेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि देयर विल बी नो सिंगल इंच टुवर्ड ईस्ट, ये एक बात बोली थी, तो क्या इसका कोई फॉर्मल एग्रीमेंट है? क्योंकि रशिया ये बोलता है कि यार आपने जो प्रॉमिस किया था कि हम ईस्टवर्ड एक्सपांड नहीं करेंगे, आप कर रहे हो, और इसीलिए रशिया एग्रेसिव हो गया अंडर द लीडरशिप ऑफ व्लादिमीर पुतिन। तो क्या ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है, कोई एग्रीमेंट है? नहीं, यहां पे बोला हुआ है देयर इज नो फॉर्मल लीगली बाइंडिंग पैक्ट और ट्रीटी दैट प्रोमिस्ड नो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो। पहली चीज तो ये हो गई। नॉट 1 इंच टू द ईस्ट, द मोस्ट फेमस फ्रेज एसोसिएटेड विद द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बैकर statement to the Gorbachev on February 9, 1990. There would be no extension of NATO's jurisdiction for the forces of NATO 1 inch to the east. वर्बल बातें थी, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था। नाटो ने कहा यार कि हमने उस टाइम पे बोल दिया था, कहने की बात थी, बढ़ गए आगे तो क्या हो गया। एक चीज तो ये हो गई। द रिमार्क एंड द सिमिलर वंस फ्रॉम द वेस्टर्न लीडर्स लाइक जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैंस डेट्रिक जेंस्चर and Chancellor Helmut Kohl were made in the context of discussion about the reunified German's status with the NATO. ठीक है, अब रशियंस इसको क्या मानते हैं? रशिया बोलता है कि ये बिट्रेड अस, ठीक है, जो नेटो कंट्रीज हैं इन्होंने हमें बिट्रे किया है, ठीक। सो नो फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कहीं ट्रीटी नहीं है, कोई कहीं कोडिफिकेशन नहीं है। नेटो अब बोलता है कि यार हमारी तो ओपन डोर पॉलिसी है, और वो हमारे आर्टिकल 10 में मेंशन है कि कोई भी सोवरेन स्टेट जिसको लगता है कि उसकी सिक्योरिटी इंटीग्रिटी थ्रेटन है तो वो ज्वाइन कर सकता है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो भी कंट्रीज जो सोवियत यूनियन से बाहर आई हैं, दे आर ओपन टू ज्वाइन, दे आर फ्री टू ज्वाइन, वी आर नॉट फोर्सिंग देम टू ज्वाइन नेटो। इस वजह से उन्होंने ज्वाइन किया, ये तो प्रिंसिपल्स है ट्रीटी के, ठीक है। रशिया बोल रहा है कि क्या है ये एक प्रकार का बिट्रेयल है। अब कौन सही है कौन गलत है आप मत जाओ, बिकॉज इन जियोपॉलिटिक्स सच प्रोमिसेस आर नॉट मेंट टू बी फॉलोड, ठीक है। शिफ्ट टूवर्ड्स कॉन्फ्रंटेशन आफ्टर 2000 एंड बियॉन्ड, क्योंकि यहां पे अब लीडरशिप आ गई वन एंड ओनली व्लादिमीर पुतिन, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो अंडर व्लादिमीर पुतिन रशिया स्टार्टेड ओपोजिंग नेटोस ईस्टवर्ड एक्सपांशन। रुका नहीं तो उन्होंने फिर से वॉर्सो पैक्ट के जैसा ही एक नया पैक्ट बनाया विच इज नोन एज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच वाज फॉर्म्ड इन 2002। रशिया, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, एंड द सेम जस्ट लाइक वॉर्सो पैक्ट एंड नेटो, देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी। लेकिन बात यह आती है कि जब नेटो के बराबर का CSTO बना लिया है तो प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है बहुत सारे। क्या? पहली चीज तो ये कि रशिया का बहुत ही ज्यादा डोमिनेंस है, जैसे वहां यूएस का है लेकिन उतना नहीं है, यहाँ पे रशिया का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। और रशिया ऐसा बोलते हैं क्रिटिक्स कि इसको एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं CSTO को। क्यों? क्योंकि अर्मेनिया में वॉर हुआ, अर्मेनिया इज वन ऑफ द CSTO मेंबर कंट्री एंड अज़रबैजान वाज द एग्रेसर कंट्री, लेकिन रशिया ने कोई हेल्प नहीं करी। तो ये वाली बात है कि डोमिनेंस ऑफ रशिया एंड रशिया इज यूजिंग CSTO एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी। लैक ऑफ कंसेंसस इन द क्राइसिस सच एज अर्मेनिया अज़रबैजान, ओके, कॉन्फ्लिक्ट इन नगोर्नो कराबाख रीजन, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हेल्प भेजनी चाहिए थी लेकिन नहीं भेजी। अर्मेनिया PM इंसिस्ट कंट्री हैज इररिवोकेबली ब्रोकन विद द रशिया लेड CSTO। अर्मेनिया ने कहा कि अब हम इसका पार्ट ही नहीं बनेंगे, अब कभी भी ये स्टेप नहीं लिया जाएगा कि हम ज्वाइन कर लें। ये एक वीकनेस है। दूसरी वीकनेस है किर्गिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर क्लैश।
CSTO have been ineffective in mediating or intervening in the border conflict between the two. ठीक है. नेक्स्ट यूक्रेन वॉर. यूक्रेन वॉर में रशिया ने इनिशिएट किया, बट नन ऑफ द CSTO मेंबर कंट्री प्रोवाइडेड मिलिट्री हेल्प टू द रशिया. ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया. एंड इंटरनल डाइवर्जेंस एंड डाइवर्स इंटरेस्ट, उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत अलग अलग हैं. ज्यादातर कंट्री चाइना या फिर वेस्टर्न कंट्रीज यूएस के साथ में अपने इकोनॉमिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने में लगी हुई है. इसी वजह से CSTO को क्या कहा जाता है? पेपर टाइगर क्रिटिसिज्म. क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये पेपर टाइगर है, इट इज नॉट लाइक नेटो. नेटो इज समथिंग एल्स. तो ये भी चीज हो गई क्लियर कि नेटो अभी तक चल रहा है आफ्टर 1949 सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट, एंड इट इज इफेक्टिवली यू कैन से countering Russian aggression on Western European countries. But Warsaw Pact failed and CSTO failed. Okay? ये एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानने की. सो रशियन एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, फिर भी रशिया मान ही नहीं रहा है. क्या किया और क्यों किया ये तो सब आप जानते ही हैं कि ऐसा लगा रशिया को कि अब यूक्रेन भी ज्वाइन करने वाला है, और नेटो बिल्कुल एकदम हमारे गले तक आ गया है. गले तक क्यों आ गया है? इसका मतलब ये कि बिल्कुल सारी जो कंट्रीज हैं जो रशिया के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, सबके आसपास सारी कंट्रीज ने नेटो ज्वाइन कर लिया है. तो अब यूक्रेन में आ जाने का प्रॉब्लम हो जाएगी. इस वजह से मिलिट्री बिल्टअप कमेंसेस. ठीक है. रशिया आप जानते ही हैं कि पहला क्या किया, रशिया एनेक्सेस क्रीमिया इन 2014. फिर धीरे धीरे करके रशिया गैदर्ड मोर देन 1,50,000 ट्रूप्स एंड हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स देयर. फिर मिलिट्री बिल्टअप कमेंसेस, और अब तो रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, अभी तक चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है. ठीक है. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सो हाउ द इमरजेंस ऑफ ट्रम्प एंड द अनसर्टेनिटी इन यूएस पॉलिसी इम्पैक्टेड कोहेशन इन नेटो मेंबर कंट्री. तो आप सब लोगों को बैकग्राउंड अभी तक का पता चल गया कि कैसे नेटो इमर्ज होता है, कैसे वॉर्सो पैक्ट आता है, कैसे CSTO इनइफेक्टिव होता है, फिर भी रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर देता है. क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन बिल्कुल ज्वाइन करने वाला है क्या? नेटो. ठीक है. ये था बैकग्राउंड. अब ट्रंप का दोबारा प्रेसिडेंट बनना पहली चीज, और दूसरा ट्रंप का बार बार प्रेशराइज करना कि डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाओ, नहीं तो हम अपने ट्रूप्स विड्रॉ करने लगेंगे. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सारे यूरोपियन कंट्रीज को एक चीज का अंदाजा हो गया है कि यूएस पर बहुत दिनों तक रिलाय नहीं कर सकते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी. तो इस वजह से उन्होंने क्या प्रिपरेशन शुरू कर दी है वो भी इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं. एनहेंस्ड यूरोपियन सेल्फ रिलायंस एंड इंटीग्रेशन. ठीक है. द अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द यूएस कमिटमेंट हैज अनडिनाइबली स्पर्ड यूरोपियन नेटो मेंबर्स टू स्ट्रेंथन देयर ओन डिफेंस कैपेबिलिटी. पहला, European Defense Industrial Strategy, European Defense Investment Program, EDIS and EDIP. These aims to boost European defense industry base. और उसमें बहुत सारे component हैं. Then Security Action for European Instrument, that is SAFE, a proposed 150 billion loan instrument using joint EU borrowing to help countries to invest in key defense industries. तो बहुत सारा वो अब काम करने लगे हैं. आने वाले टाइम में नेटो का भी हाल बदल सकता है, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन देयर ओन डिफेंस कैपेबिलिटीज. एक्ट इन सपोर्ट ऑफ एम्यूनिशन प्रोडक्शन. ठीक है. ऐसे सिमिलरली रीआर्म यूरोप प्लान और रेडीनेस बाय 2030, a broader vision to mobilize 800 billion euros for defense spending by European imperative. ठीक है. So under Donald Trump's second term presidency, NATO is at crossroad in terms second. Okay, Trump's second term. ठीक है. Then pressure and unification paradox. While Trump's rhetoric created friction and uncertainty, it paradoxically also acted as a powerful unifying force among the European allies and focus on fundamental capability. ठीक है. जैसे कि यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव, जस्ट लाइक आयरन डोम, दे आर ऑल्सो डेवलपिंग देयर ओन आयरन डोम लाइक कैपेबिलिटीज, आर्टिलरी, ड्रोन्स, मिलिट्री मोबिलिटी एंड साइबर सिक्योरिटी.
ठीक है, तो आप समझ गए कि ट्रंप के जो रेटोरिक्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है नेटो कंट्रीज पे। सो आई होप कि आपको ये पूरा जो डिस्कशन है समझ में आया होगा। आप यूपीएससी ने जो मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एज आई फील कि इन फ्यूचर यूपीएससी विल आस्क वन ऑफ द क्वेश्चन ओके ऑन यूरोपियन यूनियन एज वेल एज नेटो कंट्रीज इन प्रीलिम्स। तो आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका मॉडल आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और ये जो दोनों क्वेश्चन है इनके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जो सही आंसर होगा उसको हम लाइक कर देंगे। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।